देखिए, 20 नवंबर को एक बहुत ही दुखदाई घटना कनाडा के कैल्डन शहर में घटी थी। हमारे सिख समाज से वहाँ पर घूमने के लिए गए हुए थे जगतार सिंह जी हरभजन कौर अपने बच्चों के कोल, और 20 नवंबर को ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਲੀਆਂ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਏ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਿਟੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 29 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਬਚੀ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੇ 13 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 12-13 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਤੱਥ ਸਨ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗਹਿਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। हरियाणा कमेटी भी मिलेगी जी पीड़ितों से जो वहाँ घायल। देखिए, हरियाणा कमेटी, ये कनाडा का मसला है। कनाडा जाने वास्ते वीज़ा चाहिए होंदा है, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। सर किस पे जाहिर हो रहा है क्योंकि वहाँ पुलिस ने भी बहुत देरी की, इलाज में भी देरी की और उससे पहले 16 तारीख को इंटेलिजेंसी वहाँ मिली हुई थी, तो किस पे शक लगता है कि बेटे ने भी शायद पुलिस पे शक जाहिर किया है? सर, आप समझ सकते हैं, हम तो कहते हैं जब इंटेलिजेंसी आके पता कर रही है, वहाँ की पुलिस पता कर रही है भी आदमी कौन है, क्या है, तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ रहे हैं। हो सकता है किसी और के शक में ये कोई किसी और का नाम लेकर ये वारदात को गलत तरीके से अंजाम दिया गया। हमें तो कई प्रकार के शक हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं आज की तारीख में कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। हरियाणा साहब क्या कहेंगे, कमेटी का चुनाव जो है बड़े लंबे समय से अटका है, वोटें भी लगातार जो है बन रही हैं, लेकिन उनमें भी कहीं जो है कागजों में कमी थी, कहीं और थी, तो क्या चल रही है? देखिए, बड़े लंबे 22 साल के संघर्ष के बाद हरियाणा कमेटी बनी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद
हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा की सरकार का कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा और हरियाणा सरकार ने एक एडहॉक कमेटी बनाई। उसका कार्यकाल जो 1.5 साल का वो बनाया गया और 1-1.5 साल उन्होंने टर्म आगे भी रखी थी। लेकिन हम चाहते हैं कि जो चुनाव हैं वो समय पर होने चाहिए। आज सरकार ने गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन का गठन किया। HS भल्ला जी उनका चेयरमैन बनाए गए, रिटायर्ड जज हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो वोटर लिस्ट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो केस जीते हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी केस जीती है, ये है कि सहजधारियों के वोट इसमें नहीं बनेंगे। ये निरोल सिख संस्था है, सिखों के वोट बनने चाहिए। लेकिन बड़े पद्धर के ऊपर मेरा गांव अजराना खुर्द है, 1180 के करीब मेरे गांव की वोटें बनी हैं और हमने फार्म बने हैं 650। जो हमने फार्म भरे हैं उनकी वोट नहीं बनी। जो लोग सहजधारी हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को भी शायद बीच में नहीं मानते, उन सब लोगों की वोटें बड़े पद्धर पर इस पे बनी हैं। मैंने यहाँ आने से पहले एक मेल की है चुनाव आयोग को और एक व्हाट्सएप पे भी ये भेजा है। इसमें लिखा है कि जो वोटें हैं उसमें बहुत बड़े पद्धर पर गड़बड़ी हुई है। जिस अधिकारियों ने ये की है, किस मंशा से की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों कार्रवाई? भाई एक सिख ने तो वोट बनवाई, अपने फार्म भरे, दोबारा उसके साथ फार्म लगाए और हमने मेहनत की। जिन्होंने चुनाव लड़ना था उन्होंने मेहनत की और जो फार्म बने वो वोटें नहीं बनी। उन्होंने बड़ा सौखा आसान तरीका ढूंढ लिया कि कंप्यूटर पे बैठ के जो विधानसभा की वोटें थी, जहां सरदार की वोट दिखी वहां 5-10 वोटें और नाल उठा ली, बन गई 5 सरदारों की। और सबसे बड़ी बात है, बहुत लोग उसमें मर चुके हैं। नई लिस्ट बने, नया चुनाव होने वाला हो और मरे लोगों की बन जाए। 18 से ऊपर वालों की वोट देने का अधिकार है। हमारे नौजवानों ने बड़े पद्धर पर इसमें चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अपनी वोटिंग भरी है, उनकी एक भी नहीं बनी। हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जब तक इसको पूरा करके और समय से चुनाव होने चाहिए। किसकी गड़बड़ी मानते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ी तो किसी के, क्या लगता है आपको, क्यों इसके पीछे कौन? मैं तो कहता हूं जिन अधिकारी हैं जिन्होंने वोटें बनाई हैं। अब मेरे गांव के वोट की हमने बताया, ऐसे ही हर एक गांव में है, बहुत ज्यादा वोटें हैं। आपको भी मैं दिखा भी देता हूं। तो जो वोटें हैं लगातार उसमें है ही एक भी सिख नहीं है। तो टोटल वोट कितनी बड़ी है ये देखिए, आपको दिखाता हूं। इस लिस्ट के अंदर एक भी सरदार नहीं है। मेरे गांव की लिस्ट है, एक भी सरदार की वोट नहीं है इसमें। ये देखिए आप, ये वोटें बनी हैं, ऐसे हर गांव में बनी हैं। और गांव के जो हमारे सिख समाज के लोग हैं वो नहीं चाहते कि किसी सहजदारी की, और इन्होंने भी ये भी नहीं चाहते। ये कहते हैं ना हमने वोट फार्म भरा, ना हमने वोट के लिए मांग की। इनका क्या कसूर है? इनका कसूर नहीं है, बनाने वाले का कसूर है। आप कहते हो कि फार्म भर के दो, लोगों ने मेहनत करी, इन्होंने फार्म भी नहीं भरा। कैलाश भगत एक चेयरमैन है हरियाणा सरकार के अंदर, उसकी वोट बन गई। वो कहता हूं मेरा फार्म तो दिखा दो, मैंने कोई फार्म तो भरा होगा। ऐसे जो लोग खुद नहीं चाहते, क्योंकि ये एक संस्था का चुनाव है, सिख समाज का चुनाव है, एक भाईचारे का चुनाव है, और इसमें दूसरा खुद चाहते हैं कि हमारी वोट नहीं बननी चाहिए। जो वोटें बनी है ये खुद चाहते हैं कि हमारी वोट नहीं बननी चाहिए। बड़े पद्धर पर ये धांधली हुई है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कार्रवाई की मांग करते हैं। टोटल वोट कितनी बनी है अभी तक? हमें तो वो भी लिस्ट नहीं दी, कोई सूची नहीं आई जिसमें टोटल वोट अखबार में दे दी हो भी कुरुक्षेत्र हल्के में इतनी बन गई, पेवा हल्के में इतनी बन गई और शाहबाद में इतनी बढ़ गई। कोई सूची नहीं आई।
मतलब जल्दबाजी में भागते हुए ये काम किए जा रहे हैं, जल्दबाजी का है। और ये एक संस्था का चुनाव है, बड़ा अहम चुनाव है, ये सेवा का चुनाव है और इसमें ये धांधली ये नहीं होनी चाहिए। मैं चुनाव आयोग के बल्ला जी हैं, हमारे रिटायर्ड जज हैं, वो थोड़ी जल्दबाजी में भाग रहे हैं। हम उनको विनती भी बड़े बार कर चुके हैं, भी आप इतना स्पीड से भाग रहे हो, काम तो टाइम दे दो, कुछ वोटें सही कर दें और आप इलेक्शन करवा दो। इसमें एक दिक्कत और आ रही है जराना साहब, एक परिवार की 8 वोटें हैं, 2 एक बूथ पे, 2 एक बूथ पे, 2 एक बूथ पे। ये हमारे मेरी खुद की वोट है जो कि मेरी आती है गुरु नानक स्कूल में, और जबकि मेरी वोट जो है इधर विद्या भारती कोई है नरकाधारी रोड में, उसमें फेंकी हुई कोई लिंक ही नहीं है। 3 वोट की लिस्ट हमारी पूरी, हमने जो लिस्ट बाकी सारी वहीं की है भाई, बाकी सारे मतलब हम तो कमाल मान गए भी ये चुनाव हो रहा है कि ये खेल हो रहा है। जैसे एक आता है, चलो भाई इसका क्या है, हमने 22 साल लड़ाई लड़ी है हरियाणा कमेटी के लिए, ऐसे काम के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। और मैं संगत से भी बेनती कर रहा हूं, अच्छे लोगों को चुनाव में जिताकर आप भेजें ताकि अच्छा एक प्रबंध हरियाणा कमेटी का हो सके।